All right. So today we are going to study about stoichiometry, right? As you know, the whole physical roams around understanding about the mole and its application related to different topics, right? So the very first thing that I would like to please make a quick note. I'll be writing few things here. See, 1 mole, whenever we say 1 mole, as you would have heard about one of the 7 SI units, that it is used to measure the amount of substance. Yes or no? So what is 1 mole exactly? If we say what is 1 mole, it is simply a number, my dear. Okay, it is simply a number. Like a dozen used to be there, na? A dozen means how much? 1 dozen means how much? ऐसे बोलते ना यार, दर्जन के भाव केले मिलते हैं ना? 1 dozen means 12. So like that, 1 mole is this number. Okay, and we write it Na. Avogadro's number also we used to say. Is that clear? Now this is the first thing that you are supposed to remember. I hope you already know this, but if you do not know, then please write it down. Second thing, very, very important. What do you understand by 1 AMU, which is nowadays very popular with U? AMU means atomic mass unit. Now it is unified mass. So 1 U or 1 AMU, both of these you will get in your books. How much is that? Can anybody tell that? 1/12 the mass of 1/12 the mass of carbon atom. Nice. So basically mass of C12 isotope. Yes or no? Mass of C12 isotope. Achha, if I'll ask you, can you just tell me how much this value will be in grams? How much this value will be in grams? Because see, this is a mass related thing, so its value will be definitely in grams, kilograms, right? So tell me, anyone? Sir, 6 into 10 raised to power minus 24. Sorry? 6 into 10 raised to power minus 24. Minus 24, you are saying. Yes, anyone else? Sir, 2 into 10 is to power 23. 2 into 10 to the power no. Minus 23. Minus Sir, 23. 1.6 into 10 raised to minus 24. That seems correct. See, okay, let me write it down. You know, this value is very close to the mass of proton. And of course it is, as you know, proton and neutron mass are closer. So it will be equal, close to mass of neutron also. How do I know all of these? You see, mass of C12 isotope, when we say, so whenever we are writing any element like this is Z, Z is number of proton, and here we write as A is mass number, proton, and this is neutron plus proton. Basically, that's how we used to say, right? As you know that number of electron, proton, neutron, Z, this is A minus Z, and if the atom is neutral, then P and this will be same, right? It will be also equal to Z. If positive charge is there, you know, 1 electron will be removed, plus 2 means 2 electrons are removed. So like that it will be. So proton and neutron. So now if I talk about what is the mass of C12 isotope, so you know the mass of electron, which is of the order of 10 to the power minus 31 in kilogram, and proton's mass is of the order of minus 27 kg, and similarly this is also of the order of this. So if you take that, you will figure it out, minus 27 and minus 31, right? 10 to the power 4 times less. Nearly, we used to say that 1836 times higher. The mass of the proton is nearly 1836 and 37 times higher than that of electron. So that's why when we have to add, yesterday also we have seen, right, when we were using the ionic equilibrium concept, वहां पे भी हमने सीखा था ना कि जब एक नंबर बहुत छोटा हो जाए एक के कंपैरिजन में, जब आप ऐड करते हो तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. So that's the reason whenever we say mass of an atom, mass of atom,
तो उस टाइम पे हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, राइट? इट डजंट मीन दैट कि ऐड करने से बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, थ्योरेटिकली चेंज आएगा बट प्रैक्टिकली इट विल बी मीनिंगलेस। सो क्लोज टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, राइट? करेक्ट। सो अब आप देखो यहाँ पे 12 C12 है, C12 मींस टोटल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं हमारे पास? 12। अभी ऐसा मैं बोल दूं कि ये बताओ मास ऑफ 1 मोल कितना आएगा? मास ऑफ 1 मोल of C12 if we have taken, what will be the mass? I hope you all know that it will be nothing but say 12 grams. Am I right or not? This will be 12 grams, and 1 mole of C12 have how many nucleons? You know nucleon means proton and neutron का जो भी sum आता है उसको हम nucleons बोलते हैं. So this is nothing but 1 mole multiply by 12 nucleons. 12 nucleons. ये मिला के आपका 12 ग्राम आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 न्यूक्लियन का मास कितना है, रफ में बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मासेस स्लाइटली डिफर करते हैं, दैट टू एंड डेसिमल सेकंड थर्ड प्लेस के बाद ही है। सो 1 न्यूक्लियन का मास कितना होगा? दैट विल बी 12 ग्राम बाई 12 मोल। एंड एज आई टोल्ड यू माय डियर, 1 मोल इज नथिंग बट 6.02 into 10 to the power 23। अगर आप इसको रखो तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6.02 अप्रोक्सीमेटली, आप उसको 6 ही एज्यूम करो, 23। अब आप चेक कर लो कितना आ रहा है, 1.67 आ रहा है क्या? चेक करो तो 1.66 अप्रोक्स 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। सो प्लीज, तो आपको एक और स्टेप इसमें ऐड करना है, विच इज नथिंग बट 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, और आपको इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 ग्राम पर मोल। माय डियर, these many terminologies you can write. Again I am saying, आप ऐसा भी लिख सकते हो, right? All these terminologies you can use. Of course this is exactly equal to this, but close to these values, right? जब आप प्रैक्टिकल सेंस में यूज करते हो तो हम उसको लिख सकते हैं, करेक्ट? तो बस एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसको लिखो आप। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, राइट? इंटरेस्टिंग क्या है कि जब भी आप 1 मोल न्यूक्लियन का मास, 1 मोल प्रोटॉन हैव मास, कितना आएगा जरा चेक करो तो। वैसे ही 1 मोल न्यूट्रॉन हैव मास, कितना आएगा कलेक्टिव मास? चेक करो जल्दी, क्लोज वैल्यूज मुझे बता दो। और एक चीज मैं पूछता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। वन मोल पी हैव हाउ मच मास गाइस? क्विकली, थोड़ा कैलकुलेशन करना है आज, है ना? चलिए बताओ। 1 मोल प्रोटॉन हैव मास, वन मोल प्रोटॉन का मास, 1 मोल न्यूट्रॉन का मास एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। जिसका भी आ जाए दे कैन स्ट्रेट अवे टेल मी। चलो आजा देखते हैं। किसका सर आया? 1 ग्राम 1.04 grams. सीरियसली? चलो देखो, 1 मोल प्रोटॉन का मास, अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर दिस विल बी क्लोज टू 1 ग्राम यार, दिस विल बी ऑल्सो क्लोज टू 1 ग्राम। ये थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखते हैं यार, ये बहुत सिंपल सा था। क्या अभी मैंने दिखाया आपको कि आप देखो 1 न्यूक्लियन का मास, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट माय डियर 1 am। और अगर उसको लिखना चाहूं तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं, यू कैन यूज एनीथिंग।
So if I have to calculate, suppose मुझे यहाँ पे निकालना है. So mass of 1 mole of proton is equal to simply mass of 1 proton multiplied by this big number, isn't it? अच्छा, एक सिंगल प्रोटॉन का मास कितना है? अब आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ध्यान रखते हो तो एक लाइन में आंसर आएगा. मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 प्रोटॉन विल बी 1 ग्राम पर, क्लोज टू 1 ग्राम पर मोल. अरे भाई यहीं से लिखा है मैंने. और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. अब आप देखो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, कैंसिल हो गया. तो क्लोज टू कितना आ गया 1 मोल. सो वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. 1 मोल प्रोटॉन है तो 1 ग्राम, 1 मोल न्यूट्रॉन मिलके हो गया तो 1 ग्राम. 1 मोल न्यूट्रॉन है तब जाकर के वो 1 ग्राम होता है. ठीक है, वैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना हो तो सिंपल यार, दैट विल बी मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय अगेन 1 मोल. दिस टाइम यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के मास को इस टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो कोई बात नहीं, कर लो. Mass of single electron is how much? 9.1 into 10 raised to minus 31. 31. 31 kg, right? So अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो आप कर लो. 28. अप्रोक्सीमेटली मुझे बताओ. 0.55. 0.2 को भी नेग्लेक्ट कर दो ना जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना. दैट वोंट मेक बिग डिफरेंस, राइट? Am I right? 10 to the power minus 31 and 23 कितना आ जाएगा ये बोलो? -8. तो ये आ जाएगा 5.46 into 10 to the power minus 7 kg, or if I have to write in gram it will be 5.46 into 10 to the power minus 1000 यानी कि 4 ग्राम. Can you see this? जहां पे ये 1 ग्राम है वहां पे ये 5.46 into 10 to the power minus 4 ग्राम. So that's the reason why we neglect these electrons, right? कोई यूज नहीं है. आप देख सकते हो कि nearly 2000 times smaller है electron. Okay, so these are important figures, don't neglect that, write it down. Even if you know that also it will definitely help. अच्छा, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं जिसका एक बेसिक सीट आज आपको मिल जाएगा, राइट? दैट इज, आप कह सकते हो कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये छोटे छोटे एलिमेंट्री चीजें क्लियर है या नहीं, उसके लिए एडवांस लेवल का सीट आपको वीकेंड में दूंगा. अभी आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट? आज मिल जाएगा आपको 10:30 तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा. सर 1 मिनट बस. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, मोल के बारे में पता नहीं क्या परसेप्शन लेकर के आते हैं हम लोग 9th-10th क्लासेस से. रियली में मोल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, उसके अलावा और कुछ दिमाग में मत लगाना, ठीक है? सर डन. डन, ओके. सो अभी हमने बहुत सारी चीजें जान ली, और खास करके ये सारे पॉइंट्स जो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह लिखते चलेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस को यूज करेंगे, राइट? अच्छा, अब देखो इसी इसी सेम प्रिंसिपल पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आपको चार्जेस मालूम है. बताओ तो, जल्दी बता दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.67. 1.6 into 10 raised to the power -19. Minus 19. हाँ 1.6 होता है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.602 होता है प्रिसाइसली अगर बोले तो, बट 1.602 अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिख सकते हो. 10 to the power -19 कूलम, दैट इज क्वाइट अ बिग नंबर, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं 1 कूलम अगर हमें चार्ज चाहिए तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू वी नीड? 6.25 into 10 raised to the power 18. 5 into 10. आप इमेजिन करो कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? वो काउंटेबल भी नहीं है. 10 का पावर 18 है यार, बिलियन ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा है वो.
ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के तब, सो 1 कूलम इज नॉट अ स्मॉल चार्ज, राइट? करेक्ट, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है ये। इसलिए आपने कैपेसिटर में देखा होगा, यूनिट कैपेसिटर के जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो माइक्रो, नैनो, उस वाले Yes, sir. लेवल में होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। एनीवे, सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, एंड ऑफ कोर्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन विल आल्सो बी सेम, जस्ट द पॉजिटिव साइन विल बी देयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ 1 मोल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बस साइन मुझे इस बार नहीं देखना है, आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ओनली, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वैल्यू, इन कूलम, आंसर इट इन कूलम। 96500. तो हाँ बिल्कुल, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो करना क्या है भाई, दिस इज चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन एंड मल्टीप्लाई बाई 1 मोल। ये सुनो, 6.023 इंटू 10 to the power 2, 6.02 भी आप लिख लो, आपको अभी यहाँ पे कई लोग 22 बोलते हैं, 23 बोलते हैं, तो यूज दिस वैल्यू। सो दिस विल बी हाउ मच, 9648, close to this is close to 96480, जिसको और हम रफली क्या बोलते थे, 96500 कूलम, और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, 1 farad. 1 farad. हाँ, सो वेरी पॉपुलरली नोन एज 1 farad। करेक्ट। सो 1 मोल, जैसा बार बार बोल रहा हूँ, 1 मोल नंबर है, उससे बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट? देखते हैं आप क्या करते हो। इसी में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Can you tell me what is the charge of aluminium +3? Come on. Sir, 1 mole aluminium का। Just I wrote this only. You tell me that only. I did not write anything. Charge of aluminium +3. ये बताओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी करो। Sir, 4.8 into 10 raised to the power -19. 4.8 into 10 to the power -19. -19 watt Coulomb. coulomb. Is that or simply 3 coulomb? देखो क्या है कि हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। जनरली हम क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ तो मैंने सिखा दिया आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप यहाँ देख पा रहे हो, बट कॉमन प्रैक्टिस में क्या है, जब भी हम लिखते हैं Na+, तो दिमाग में आता है ऐसे, यार ये +1 है, +1 इतना बार दिमाग में चला जाता है कि हमारे, हम सोचते भी नहीं है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, और कॉमनली हम 1 कूलम लिख देते हैं। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप कभी नहीं सोच सकते हो कि 1 कूलम आएगा। Na+ means only this, that out of 11 electron that we had here, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, बस इतना ही है। Means when I'm saying Na+, it means a total of 11 proton। आप बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, 12 है ना, 12 न्यूट्रॉन। This is what Na+ means only, and 10 electron. Did you understand my point or not? Yes, sir. Na+ simply means this only, nothing else. अब मैं आपसे बोलूं कि यार इसका चार्ज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो न्यूट्रल होता है, ये दोनों चार्ज हैं, और फॉर्चुनेटली हमें मालूम है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल एंड साइन में अपोजिट होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एंड दिस इज नथिंग बट, बोलिए भाई, 1.6 6 -19.
कूलम। ये आ गया हमारा Na प्लस का चार्ज, ये है +1 कूलम नहीं है। ठीक उसी तरीके से एल्यूमिनियम +3 का मतलब इट इज डिप्राइव्ड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अदर वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इसका जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो जिसने भी आंसर किया था एब्सोल्युटली करेक्ट, 4.8 इंटू। तो ये जंबल नहीं करना है, राइट। अच्छा, अभी ऐसा कर लेने से बेनिफिट क्या है? तो अगर मैं आपसे कभी भी 2 मोल 3 मोल का पूछूं तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मैं पूछूं, बताओ, चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 कितना चार्ज है? 6 Faraday. एग्जैक्टली। सो अगर आप देखो तो 1 मोल अभी यहाँ पे दिखाया था, 1 मोल प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू 1 फैराडे। सो कितने मोल प्रोटॉन का एक्सेस चार्ज है यहाँ पे आप देखो। सो 3 प्रोटॉन एक्सेस है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, और 2 मोल हमने ले लिया, तो मतलब टोटल कितना आ गया? 6 मोल प्रोटॉन। एंड 1 मोल प्रोटॉन इज हाउ मच? 965. कितना आएगा? 6 फैराडे। करना है कैलकुलेशन तो आप कर लो, आपकी मर्जी, क्योंकि एक सिंगल यूनिट पे तो हमने चार्ज बता दिया, उससे आप कैलकुलेशन करके देखो, यही आने वाला। ठीक है, तो ये चलो एलिमेंट्री लेवल की सारी बातें डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा और अप करते हैं, थोड़ा और चीजें देखते हैं इसमें। हाँ, देखो एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी मोलर मास की। ये यस सर। इसी मोलर मास को हम डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे जैसे अगर वो एटम है, जैसे एटॉमिक मास हो गया। ये हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, एटम्स के लिए हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एटम्स, ये हम टर्मिनोलॉजी इनके लिए यूज करते हैं। होता वो भी मोलर मास ही है। अगर सर वो आ गया हमारा मॉलिक्यूल, तो जैसे H2O इज अ मॉलिक्यूल, इनफैक्ट H2 itself इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूलर मास। H2SO4, तो इसको बोलते हैं ग्राम। ऐसे ही अगर हमारा आयनिक कंपाउंड हो गया तो वहां फॉर्मूला वेट का यूज करते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, जैसा स्पीशीज उसके हिसाब से, अगर ग्राम के बाद ये लिख जाए, ग्राम के बाद ये लग जाए, तो समझ लेना कि वो मोलर मास बोल रहा है। फिलहाल मुझे ये समझाओ कि मोलर मास होता क्या है आखिर? Mass of 1 mole of a substance. एग्जैक्टली, कोई भी सब्सटेंस दे उसके 1 मोल का मास। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर वो एटम है तो मोलर मास ऑफ एटम हो जाएगा, वो अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड है तो उसके फॉर्मूले का, राइट, आयनिक है तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यहीं से एक और टर्म डिराइव्ड है, वो भी आप थोड़ा सा समझ लो। कभी भी ऐसा बोल दें, ध्यान से देखना, ये दोनों में डिफरेंस है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ये एकदम अलग चीज है। और अगर ऐसा बोल दिया 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये बिल्कुल अलग चीज है। जब भी ग्राम एटम एक साथ लग जाए तो उसको कुछ नहीं बल्कि मोल। दिस इज 1 मोल ऑफ सोडियम। बट इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सोडियम टेकन इज 1 ग्राम। डिफरेंस है भाई, यहां पे 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब कितना हो गया? 23 ग्राम। ये सुनो, Yes, sir. तो ध्यान रखना, ये कई बार ना हम लोग केमिस्ट्री में देखो, कई बार मिस्टेक्स ना, पहले से ही दिमाग में कुछ फिगर चल रहे होते हैं और हम गलती से वही पढ़ लेते हैं। दिमाग भी बड़ा अजीब सा चीज है। तो ये कभी भी आ जाए ग्राम, तो एक बार रुक जाओ, थोड़ा देख लो, उसको दोबारा पढ़ो अच्छे से कि ग्राम एटम लिखा है या ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा है।
तो ये बहुत एलिमेंट्री चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। सो 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मीन्स मास ऑफ सोडियम टेकन एज 1 ग्राम, और अगर 1 ग्राम एटम लिख दिया तो ऐसा। अच्छा, ग्राम एटम ये सोडियम के साथ लिख सकता है, हाइड्रोजन के साथ लिख सकता है, लेकिन अगर ऐसा मैं बोलूं तो ध्यान रखना, सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 mole 1 H2. mole of H2. 1 मोल ऑफ H2। यहीं पे अगर ऐसा बोल देता 1 ग्राम एटम ऑफ, ये खैर इतना भी लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि मैंने ये लिख के तो क्लेरिफाई कर दिया आपको, ऐसा लिखता वो, और कंफ्यूज करने के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन लिखता, तो ये 1 मोल H2 होता है, क्योंकि इसने मॉलिक्यूल लिखा ना। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 है, वही अगर मैं ऐसा लिख देता 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आएगा 1 मोल H एटम। समझ आ रहा है क्या बात? तो ये ध्यान रखना टर्मिनोलॉजी कैसे है। अगर यहीं पे और थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं ऐड करूं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ NO3 माइनस। करेक्ट। सो ये दोनों चीजें बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों। मोलर मास का मतलब फिर से एक बार नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोलर एसोसिएटेड विथ 1 मोल। सो 1 मोल गिवन सब्सटेंस का जो भी मास आएगा उसको हम मोलर मास बोल देंगे। ग्राम एटॉमिक मास, एटम के केस में इसी मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल के केस में हम इसी मोलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से आप डिराइव करना चाहो तो आयन के लिए, तो ये भी एकदम आराम से बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। छोटे छोटे बहुत कंफ्यूज करता है जब प्रॉब्लम में लगाते हैं तो, ठीक है, इसमें एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। इरिटेटिंग Excuse me, पॉइंट sir. है ये सर। ये सर जो आपने वहां पे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है उसके सर एंड में क्या लिखा है? 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम Na। ओके सर। 1 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सोडियम, और 1 मोल सोडियम का मास कितना आएगा? 23 23 ग्राम। ग्राम। वही पे लिखा है। क्लियर? अब आ जाओ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इस पे। स्टार्ट करो, हो गया? नोट कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो बताओ मुझे। मोलर मास ऑफ हीलियम का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 mole helium. हीलियम एटम, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर मास ऑफ 1 हीलियम मल्टीप्लाई बाई 1 मोल, ये सुनो। Yes, sir. अच्छा, मास ऑफ सिंगल हीलियम कितना होता है? तो हमें मालूम है 2U. कि He को हम ऐसा लिखते हैं 2He4, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका मास है 4। 4 क्या यूनिट, क्या AMU या फिर U? 4U। मॉडर्न टर्म में U ही लिखते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको।
तो AMU को हम क्या लिख सकते हैं यार, सिंपल, अभी तो सिखाया था मैंने, 1 AMU इज नथिंग बट दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 ग्राम बाई Na। तो आप लिख सकते हो 1 ग्राम बाई Na, और ये खुद में क्या है Na, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 4 ग्राम। सो सिंपल। अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है, एक सिंगल एटम का मास 4 AMU है, उसी का 1 मोल ले लिया तो 4 ग्राम हो गया, तो ये AMU से ग्राम में चेंज हो गया, इतना सा है। सो इससे हमें ये आइडिया लगा कि अगर हमें मोलर मास ऑफ H2O निकालना है तो एक काम करो ना, सभी का जो भी उनका AMU में मास होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, बार बार मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ 1H2O मल्टीप्लाई बाई 1 मोल। अच्छा सिंगल H2O का मास कितना आएगा, तो भाई उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 18 2 and 16, 18 AMU मल्टीप्लाई बाई 1 मोल। अच्छा इस AMU को क्या लिख सकते हैं, तो अभी सिखाया था मैंने, 1 ग्राम बाई ग्राम मोल। बाय मोल। यस 1 मोल कैंसिल हो गया अभी, तो कितना आ गया 18 ग्राम। तो अब देखो आप जैसे मर्जी वैसे कर लोगे, बोलो। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बताओ, मोलर मास ऑफ NO3 माइनस, और एक दे देता हूं मोलर मास ऑफ, एक मिनट, ज्यादा यूज होने वाला सल्फेट है, मोलर मास ऑफ सल्फाइड का मैं दे दे रहा हूं SO3 माइनस 2, और फिर से मुझे बताओ मोलर मास ऑफ SO3, या पहले आप SO3 निकाल दो बाद में SO3 माइनस 2 निकाल दो। इक्वल होएगा सर। दोनों का 80। बिल्कुल, क्योंकि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से निकालने से कंसिडरेबल चेंज नहीं आता है, तो इसलिए दोनों का इक्वल होगा। होगा कितना, होगा कितना, ये मासेस आपको 80 याद रखना है। grams। एग्जैक्टली सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, राइट। अच्छा आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मास नंबर आप बहुत आराम से 20 तक तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया है, लीविंग असाइड 3-4 एक्सेप्शंस ना, थिंग्स आर वेरी स्मूथ। कौन से एक्सेप्शन है, एक तो सबको ही याद रहता है यार, हाइड्रोजन तो ओके है, वी आर ओके विद दैट। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, कितना आएगा ये 32 प्लस 48 कितना आ गया ये 80, 80 ये भी आएगा 80 ग्राम, दोनों ही आएगा करेक्ट। अब मासेस याद करने के लिए जो मैंने आपको डिस्कस किया, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आप 20 तक बहुत इजीली, एटॉमिक नंबर अगर आपको मालूम है, एक चीज बताता हूं उसको ध्यान रखना, जब भी इवन नंबर आए किसका, एटॉमिक नंबर का, हाँ याद रखना ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट अ रूल, ओके। और एक बार ऑड नंबर आए, ऑड नंबर एटॉमिक, किसके बारे में बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। ये तो सबको याद रहता है एटॉमिक नंबर, वो नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते हो। इवन नंबर एटॉमिक नंबर आए तो इवन नंबर के केस में जब भी आता है तो सिंपली 2 into Z ये कर दो, ये आपका मास नंबर आ जाएगा, ये मास नंबर आएगा। और ऑड नंबर में 2 into Z plus 1, ये मोस्ट ऑफ द केस में वैलिड है, मतलब जितना भी उसका प्रोटॉन नंबर है यार, एटॉमिक नंबर है, उसका डबल प्लस 1 कर दो। चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो H को तो आप बिल्कुल ही अलग कर दो, है ना, उसको तो आप कहीं भी कंसिडर नहीं करोगे, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स में आप रख सकते हो, या ट्रेंड के अंदर नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, हीलियम, हीलियम इस कैटेगरी में है, देखो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा। उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम कौन सी कैटेगरी में आ गया, ऑड नंबर की कैटेगरी में, चेक कर लेना लिथियम का, यहाँ 3 और यहाँ पे 7 होता है, चेक कर लेना आप बुक में। अच्छा उसके बाद कौन सा आ गया इवन नंबर में, बेरिलियम आना चाहिए, बट बेरिलियम का 4 यहाँ पे 9 होता है, ये चेक कर लेना, तो मतलब कि ये एक आपको अलग से याद है। उसके बाद आप बोरॉन देखो, चेक कर लो, यहाँ पे बोरॉन का 5, यहाँ पे 11 आएगा, डबल से एक ज्यादा। उसके बाद बोरॉन, उसके बाद क्या आ गया, नाइट्रोजन एंड इट्स कार्बन
कार्बन कार्बन, तो कार्बन में आप चेक कर लो 612। फिर नाइट्रोजन आ गया, अगेन नाइट्रोजन भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो देखो ये याद है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है, ये एक और प्रॉब्लम है 14, क्योंकि होना क्या चाहिए, डबल से एक ज्यादा। उसके बाद देख लेते हैं और कहीं आता है प्रॉब्लम। तो नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, उसके बाद बताओ ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन देखो 816। उसके बाद बोलो फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होगा 9 एंड 19, चेक कर लेना। कोई नियॉन का बताएगा, नियॉन का? ऐसे नियॉन का कुछ यूज आता नहीं क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स होते नहीं है। नियॉन का चेक करके बताओ। मेरा एक्सपेक्टेशन है, मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट एक्सपेक्टेशन है कि 1020 होना चाहिए। करेक्ट 20। हाँ देखो है। उसके बाद आ जाओ सोडियम, सोडियम फिर से ऑड नंबर सर 1123। मैग्नीशियम सर इवन हो गया 1220। सर एल्यूमिनियम ऑड हो गया 1327। फिर सर एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आएगा बोलो? सिलिकॉन, बोलिए भाई। Yes, sir. 1428, 1428। उसके बाद कौन सा आ गया सर? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना होगा 15, 31। 15, 31 चेक कर लो। सल्फर का देख लो 1632, है ना। क्लोरीन एकदम ही वियर्ड सा है। वियर्ड सा क्या है कि यार ये 17 है, ये बड़ा ही अजीब सा है। कोई बताएगा यहाँ पे कितना होता है? 35.5। 35.5। 35.5। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आज बात करेंगे, ठीक है। अजीब सा ऐसा क्यों आ गया? क्या ये मास नंबर है? बिल्कुल नहीं, दिस इज एवरेज मास नंबर। Isotopes 35 and 37। और आइसोटोप के कंसिडरेबल, तो इसका क्या मतलब इन सब के आइसोटोप्स नहीं होते? होते हैं भाई, उनके परसेंटेजेस उतने नहीं है। उनके बाकी जो आइसोटोप्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, ये इनके डोमिनेटिंग फॉर्म्स हैं। बाकी यहाँ के केस में 75-25% इतना डिफरेंस आया था एग्जिस्टेंस का। 25% वी कांट नेग्लेक्ट, राइट। एवरेज में वो कंसिडरेबल डिफरेंस लेके आए। अच्छा, क्लोरीन के बाद फिर कौन सा आएगा बोलिए भाई, बोलिए बच्चों। 18 में कौन सा आएगा? आर्गन। Argon। आर्गन थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि देखो ऐसे ये यूज नहीं होता है हमारे किसी केस में। आप चेक कर लेना, शायद शायद अगर मैं करेक्ट हूं तो ये 40 है। चेक कर लेना 40 है। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या आ गया? पोटाशियम। पोटेशियम एंड कैल्शियम। देख लो आप यहाँ पे 19 39। और ये 2040। करेक्ट। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो देखो प्रॉब्लम क्या है, आपको H तो वैसे भी याद रहता है, राइट। बेरिलियम नहीं याद रहता है, एक यहाँ पे मार्क कर लो। मुझे लगता है कि यार नाइट्रोजन भी याद ही रहता है सबको, है ना। इतनी प्रैक्टिस की होगी, नाइट्रोजन याद रहेगा। तो आपको अच्छा क्लोरीन भी याद ही रहता है मोस्टली, बड़ा वियर्ड सा है। तो याद करने के लिए अगर मैं पूछूं आइडियली, तो आपके पास सिर्फ एक ये है अलग से, दूसरा एक आर्गन है, हालांकि वो यूज में नहीं आता है इसलिए कोई टेंशन। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आप ऐसे अलग से याद कर लो तो बाकी चीजों में सिंपली आप यही रूल लगा सकते हो कि इवन नंबर एटॉमिक नंबर है तो डबल से डबल होगा, ऑड है तो डबल से एक ज्यादा होगा। लेकिन ये बस यहीं तक रखना। स्कैंडियम टाइप इन सब में जाते जाओगे ना तो न्यूट्रॉन और थोड़ा ज्यादा चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। सर करेक्ट। अब वो कैल्शियम में क्यों हो? ट्वाइस ही रहेगा, 2+1 हाँ नहीं कैल्शियम होगा? में नो नो नो, क्यों क्यों वैसा होएगा? आप देखो इवन है ना, देखो बाबा इवन अच्छा, नंबर में तो यस सर। सीधा डबल होता है ना इवन। मैं इसको सर्कल नहीं करूं नहीं तो आपको लगेगा। तो देखो यार, आप अगर ये दिमाग में रखोगे, डबल तो अलग से आपको बार बार स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं होगी, और क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि देखो जेई एडवांस के अंदर तो वो ना एटॉमिक मास हर बार मेंशन करते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी। बट मेंस बिल्कुल ही अलग पैटर्न का एग्जाम है। मेन के अंदर क्या होगा, आपके साल भर में आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना डेटा के साथ आप चिपक करके बैठे हो, वो सब चीज टेस्ट करते हैं वो। तो कभी देखा होगा जेई मेन में आ गया क्वेश्चन और उसने मास नंबर ही नहीं दिया, अजीब सा ही हो जाता है। सिल्वर सिल्वर जैसे एटम्स कभी नहीं देता है वो तो। सिल्वर तो बहुत, हालांकि यूज बहुत कॉमन होता है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, याद नहीं करते। कोई बताएगा सिल्वर का 108 होता है। मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंस का नहीं देता है वो, प्लैटिनम का नहीं देता। तो मेन एग्जाम मेमोरी आपका ये खास करके इस टाइप के वर्क को ज्यादा वो प्रमोट करता है। कई बार तो एनसीईआरटी के डेटा से क्वेश्चन पूछ देता है, आप क्या कर सकते हो उसमें। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे एनसीईआरटी
और एक एक एग्जाम्पल सबको जितना क्लियर रखोगे उतना आपको इजी रहेगा। सारे क्वेश्चन नहीं आते बट 2-3 भी आ गया तो यार काफी सारा मार्क्स लेके चला जाएगा ना हमारा। सो इतना नोट कर लिया, ये एक मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ एक और छोटा सा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। वो ये देखो, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास। यहाँ पे हमने देखा कि भाई जैसे अगर हमें H2O का मोलर मास निकालना हो तो इसमें हमने सिंपली ऐड कर लिया 2 इसका और 16 इसका और सिंपली हमने बोल दिया 18 ग्राम। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि बेटा एक काम करो, आपके सामने एक वायरस मैंने दे दिया, वायरस, कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस दे देते हैं। चलो, इसने तबाही मचा के रखा है, पूरा सब कुछ बंद कर दिया। और ये कोरोना वायरस के डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कंप्लीटली इमेजिन करो कि ये स्फेरिकल है और ये जो थ्रेड्स वगैरह निकले हैं स्पाइक प्रोटीन, इनको मैं नेग्लिजिबल मान ले रहा हूं। इसका डेंसिटी मैंने दे दिया है D और इसका रेडियस, इस कोरोना वायरस का रेडियस मैंने R दे दिया। डेंसिटी D, रेडियस R। मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द मोलर मास ऑफ कोरोना वायरस। कल के डेट में ये म्यूटेट होते होते कोनिकल शेप में आ गया। इसमें हाइट h, रेडियस r, डेंसिटी d दिया हुआ है। समझ लेना ये सॉलिड है। ये दोनों ही केस में ये आपका मोलर मास नॉर्मल कोरोना वायरस, ये म्यूटेटेड वर्जन का, ये दोनों का मोलर मास मुझे बता दो। इसको करेक्ट कर दिया तो इसका मतलब यू हैव अंडरस्टूड, नहीं करेक्ट किया मतलब गेम हो रहा है आपके साथ। सर डी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, मुझे बता दो आप कितना आ रहा है, वैल्यू बताओगे। 4/3 pi r cube d। और 1/3 pi r square h into d। अच्छा, तो आपने ये बोला कि ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इसका आएगा और इसका आपने क्या बोला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आ रहा है ना सबको? आई गेस इसका वॉल्यूम है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन है ना, तो कोन का वॉल्यूम ये होता है। स्फीयर का वॉल्यूम आपको 4/3 पाई आर क्यूब एंड डी उसका डेंसिटी। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? हाथ उठाओ देखो तो, कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? 4 लोगों का आ रहा है, 5 और वंश एम आई ऑडिबल? शायद वहां पे आपका ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अस्मिता, सर ये 1 मोल का ये कैसे पता चलेगा? यार ये देखो, अब इतना टेक्निकल चीजों में मुझे मत लेके जाओ। आपसे सिंपल जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर दो। आई नीडेड मोलर मास ऑफ दिस एंड मोलर मास ऑफ दिस, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड। अब आप सोचो क्या करना है। ओपन कर दिया तो क्वेश्चन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा ना। देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड कि आप चीजों को समझ रहे हो। थोड़ा भी ओपन कर दिया तो ये क्वेश्चन का पूरा एसेंस खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, फिर मजा नहीं आएगा बिल्कुल। चलो, सो माय डियर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट इट डाउन कि ये दोनों ही आंसर एब्सोल्युटली गलत है। इसका मतलब अभी भी आपने सुना बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। चलो फिर से बेसिक्स पे आते हैं। बताओ व्हाट इज मोलर मास? रिमाइंड मी क्विकली, बोलो भाई। Mass What of do you 1 understand? mole of a substance. Yes, 1 mole of substance, exactly, you have to stick on that word. अब मुझे ये बताओ, ये जितने लोगों ने भी आंसर किया है, क्या इन्होंने 1 मोल का आंसर किया है? नो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या आंसर किया है? मास ऑफ सिंगल वायरस। वो कितना आएगा भाई? तो सर सिंपल सी बात है, डेंसिटी डी है, वॉल्यूम आपको मालूम है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड दैट इज नथिंग बट
वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई डी, ये आ गया इसका सिंगल वायरस का मास। बट क्या ये मोलर मास है? नहीं नहीं नहीं, क्या करना पड़ेगा? अरे भाई मोलर मास निकालने के लिए मोलर मास ऑफ कोरोना वायरस is equal to mass of single virus multiply by 1 mole. एवोगैड्रो नंबर। Yes. So आपका आंसर होना चाहिए था कि सर 4/3 पाई आर क्यूब डी इंटू एन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है, ये नहीं था, अदर मॉडिफाइड वर्जन था, लेकिन पूछा। देखो कितने बेसिक, कितने जगह पे जाकर के वो हिट कर रहा है आपको। यू आर सो यूज टू ऑफ कैलकुलेटिंग द थिंग कि आपको मैं बोलूं कि बेटा ये बताओ, जल्दी से बताओ मुझे H2SO4 का मोलर मास क्या है, तो आप सिंपली जो भी इसका एटॉमिक मास 98 है उसको कैलकुलेट करके सिंपली ग्राम में लिख देते हो आप। क्यों ऐसा कर देते हैं? क्योंकि हम शायद इसके बार बार एसेंस को डिराइव कभी किए ही नहीं। शायद अगर मैं पहले ही पूछ लेता कि ये कैसे आया यहाँ पे ग्राम, तो शायद वहां पे आप थोड़ा अटक सकते थे। लेकिन आज मैंने दिखाया, उसके बाद भी पूछ रहा हूँ, लेकिन तो भी देखो हमारा दिमाग क्या है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है कि आपको सिंपली सिर्फ मास दिख रहा है और कैजुअली आप ले रहे हो, उसके बगल में तो ग्राम होगा। डिड आई से कि यहाँ पे ग्राम है, किलोग्राम में कुछ भी बोला मैंने? नहीं, उससे मुझे टेंशन नहीं लेना है भाई। इट डिपेंड्स ऑन दीज यूनिट्स। आर सेंटीमीटर में दिया है क्या, डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दिया है क्या, उस पे वो खुद यार वेरिएबल्स का टेंशन है, मुझे क्यों लेना है? वो तो एग्जामिनर जब देगा तो आई विल पुट इट एंड अकॉर्डिंगली आई विल कैलकुलेट इन ग्राम्स एंड सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वन। सो लाइक दैट यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? मोलर मास ऑफ दिस वायरस विल बी 1/3 pi r square h into d into na। एकदम अच्छे से दिमाग में जितना ज्यादा अच्छे से सेट कर लिया कि मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। नाउ चलो भाई नंदा, व्हाट इज योर मास माय डियर? सर 75 75 व्हाट? 75 Na, नहीं अरे 75 grams, sorry। हाँ, your mass I'm asking, are you in gram? 75 grams, kgs don't say 75 kg, that is your mass. But if I'll ask you what is the molar mass of Nanda, what will be the answer? 75 kg into 1 mole. 75 into 1 mole। That many kgs. So molar mass of any substance, I can calculate the molar mass of this marker as well. इसका single mass multiply by 1 mole, as simple as that. क्लियर हुआ ना? तो ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस हमने इन चीजों पे की है, एटम्स पे, मॉलिक्यूल्स में, तो वहां दिमाग लगता ही नहीं है। इन सब में थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल जगहों पे लेके जाएंगे तो फिर ब्लॉक आ जाएगा। करेक्ट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया भाई, मास, मोलर मास, ये सारे कैलकुलेशन हमने कर लिए। थोड़ा सा अब स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। करेक्ट? स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं अपने पास। अभी हाफ एन आवर है अपने पास। आ जाओ, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट अब स्टार्ट करूंगा। पहले तो छोटे छोटे कैलकुलेशन कर लेते हैं, मोल, मास, मोल से वॉल्यूम पे, ये सब पे, ठीक है? तो अभी देखो हमने निकाला है बेसिकली मोल एक नंबर है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, इन शॉर्ट वी यूज्ड टू राइट एज n। तब कितने तरीके से निकाल सकते हैं? देखो अगर मुझे नंबर दिया है किसी भी चीज का, तो क्या लिख सकते हैं हम? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, which means n given by na। I hope you guys agree with me। अरे बाबा देखो 1 mole is equal to this big number। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 1 डजन में कितने मोल हैं,
हाउ मेनी मोल इन 1 डजन? तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 मोल तो तब आता है ना जब हमारे पास नंबर्स कितने हो, कितने नंबर हो तो 1 मोल आता है। अच्छा सिंगल नंबर हो तो क्या आएगा? सो 1 इज इक्वल टू 1 बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। सॉरी नीचे डिवाइड करूंगा मैं। तो सर n नंबर्स में, यानी अगर 12 नंबर में पूछ रहा हूं तो 12 नंबर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल? तो आप बोलोगे सर 12 डिवाइडेड बाई 6.02 into 10 to the power 23. So these many moles are there my dear in 1 dozen. तो ऐसे ही n नंबर में कितने मोल होंगे? तो यार n डिवाइडेड बाई na. So that's what I have written over here. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ये बताओ यार 10 to the power राइट 18 H2SO4 ले लिया मैंने. This I am telling you just the numbers. I have taken 10 to the power 18 H2SO4 molecules. Tell me how many moles of atoms are there? Come on, tell me. How many moles of atoms are there? How many moles I am asking? Atoms are there in this? Come on, do the calculation. Sir, 1.16 into 10 raised to the power 7 minus 7. -7. चलो देख लेंगे. नहीं सर, -5. देखो बच्चों, फिर से ध्यान से देखो, सभी लोग देखो. हमारे पास H2SO4 है. I have a basket where 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom, 4 oxygen atoms are there. So total atom is how many? 7 atoms in one basket. And how many such basket I have taken? कितने हैं ऐसे? तो 10 to the power 18 baskets हैं भाई. मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा, इतने ज्यादा छोटे छोटे बास्केट्स हैं और एक बास्केट में 7 एटम्स है. तो टोटल एटम अगर मुझे पूछना हो, हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने में? इतने H2SO4 में, इतने बास्केट्स में कितना? तो बोलोगे आप सर 7 into 10 to the power 18. अच्छा मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम? बड़ा सिंपल है यार. जैसे ही वो मोल्स पूछे नंबर से तो आपको गिवन नंबर और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है. तो ये 18 एंड 23 कितना हो जाएगा? 10 to the power -5. करेक्ट. और ये 7/6 विल बी हाउ मच? 1.19. 1.19. 9. आ गया ये. सर इतने मोल्स होंगे, इतने मोल्स एटम के होंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पूछे तो ये तो सिंपल है. मोल को अगर मुझे नंबर के टर्म में देखना है कि अगर नंबर दिया हो तो मोल कैसे निकालना है, तो जो भी नंबर आ रहा है उसको आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो. जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता था, चलो इसको तो थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया था. मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट. तब तो सबसे सिंपल हो जाता, क्योंकि H2SO4 का ही मुझे मोल पूछ रहा है और उसी का नंबर दिया हुआ है. H2SO4 का नंबर कितना है? 10 to the power 18. इसके मोल कितने होंगे? 10 to the power 18 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 20. समझ आ रहा है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. सो ये ध्यान रखना. सो ये मैं एग्जांपल भी देते जा रहा हूं ताकि आपको ये सेट होता जाए दिमाग. इज दैट क्लियर? सो यस, वी आर डन विद दिस. अच्छा दूसरा आ जाओ देखते हैं. इन टर्म्स ऑफ मास आ जाओ समझते हैं. देखो अब मैं जो मास के टर्म में डिस्कशन करने जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड विथ एटम, मॉलिक्यूल, आयन
कहने का मतलब ये है कि जो भी मास से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है एटॉमिक स्पीसीज से रिलेटेड, तो इसलिए उधर हमें थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो इजी हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल बाय गिविंग द मास ऑफ वायरस डिवाइड. सो वायरस और इन सब चीजों का नहीं, सिर्फ एटम मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो ये थोड़ा इजी हो जाता है. कैसे? आ जाओ ऐसे समझते हैं. ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O का मोलर मास कितना है? 18 grams. वेरी गुड, 18 ग्राम. अच्छा, मैं ऐसा पूछूं, ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि 18 ग्राम H2O मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O? टेल मी. 1 mole. करेक्ट, 1 मोल ऑफ H2O. तो अगर मैं बोलूं यार कि 1 ग्राम H2O अगर आ गया मेरे पास तो उसका मोल कितना आएगा? तो आप बोलोगे 18 ग्राम में 1 मोल मिल रहा है, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा? 1 1 by by 18. 18. वेरी नाइस, सो सिंपल यार. अच्छा, मैं बोलूं कि यार m ग्राम में कितना मिलने वाला है H2O? M by 18. अच्छा, ये 18 क्या था? मोलर मास. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार जनरल टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय 8 मोलर मास. देखो, जब नंबर था तो वो नंबर बताओ, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे मास है तो मास बताओ और उसके मोलर मास. मोलर मास खुद क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या जो भी स्पीसीज हमने लिया है उसका मास. सो गिवन मास बाय मोलर मास. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसको लूज सेंस में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं. हालांकि वेट फिजिक्स वाइज दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. वेट हम फोर्स के यूनिट को बोलते हैं, वेयर मास आपको मालूम है, बट केमिस्ट्री में चलता है इतना क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है. वी आर नॉट लुकिंग इनटू टर्मिनोलॉजी दैट मच. सो आइडियली लिखना चाहिए गिवन मास बाय मोलर मास. दैट वुड बी एन आइडियल टर्म, बट चलेगा, इतना चलता है. चलो नेक्स्ट चीज मैं पूछता हूं आपसे. ध्यान से देखो, अब जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आइडियल गैस से रिलेटेड है. फॉर आइडियल गैस, करेक्ट? बोलो तो जरा, बोलो. आइडियल गैस के लिए आपका एक एक्सप्रेशन वैलिड है हमेशा के लिए, कौन सा? PV इज इक्वल टू, nRT. दैट इज वैलिड. अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ध्यान से जरा देखना, अच्छे से देखना. मोल इज इक्वल टू PV बाई RT. अच्छे से समझना इसको, चेक करके देख लो मन चाहे तो. बच्चों, अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर मैं फिक्स कर दूं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा. ये सुनो, Yes sir. सही एवोगैड्रोस लॉ होता है. एग्जैक्टली एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है ये. जब आप लॉ में उसमें देखोगे जो डिफरेंट गैस लॉज प्रपोज किए गए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक लॉ, उसके बाद ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एंड ऐसे बहुत सारे और भी हमें मिलेंगे. कंबाइंड गैस इक्वेशन, देयर आर सो मेनी, राइट? वहां पे आप देखो तो मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है. अच्छा, इसका ये मतलब ये क्लियरली इतना है कि एक तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सर मोलर रेशियो अगर हमारा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए N1 by N2 तो वो V1 by V2. मैं इस पे अभी फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ. मेरा फोकस ये है कि बच्चों एक बड़ा कॉमन सा टर्म है जिसको हम बोलते हैं STP. कितने लोग पता है STP क्या है? 0 degree 22.4 liters.
1 So atmosphere. standard temperature pressure, standard temperature pressure, standard temperature pressure. दूसरा एक आता है बच्चों NTP, NTP, normal temperature pressure. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा अब देखो, ये बोलते जरूर है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बट रियलिटी में ये टेम्परेचर 0 ही होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट केल्विन। फिर से ध्यान से, टेम्परेचर यहाँ पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273, केल्विन। प्रेशर कितना है बच्चों, बोलिए। 1 bar. नो नो नो, Atmosphere. जब एनटीपी बोलते हैं तो 1 atm होता है, और एसटीपी बोलते हैं स्टैंडर्ड की जहां पे बात आती है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है बच्चों, वही है 0 डिग्री सेल्सियस, और T is equal to 273 केल्विन। बट प्रेशर यहाँ पे 1 बार। हालांकि आपको मालूम है यार, बार एंड एटीएम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको मालूम है कि 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, थोड़ा सा ही ज्यादा है। 1 atm इज स्लाइटली हायर। क्लियर? Yes, sir. अब देखो, अब ये बताने के बाद मैं क्या क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। आपने ये बता दिया कि टेम्परेचर प्रेशर कितना है, तब तो हम मोल का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। करके देखो, ये आएगा V डिवाइडेड बाई, अगर वो STP है, STP 1 बार, तो वो आता है 22.7 लीटर नीचे, और इसको लीटर में रखना पड़ेगा। और यही मोल आएगा कब, 22.4. जब वो एनटीपी हो जाए। कॉमन सेंस की बात है यार, एनटीपी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा करोगे, वेट अ मिनट, उल्टा हो रहा है क्या, सही तो हो रहा है यार। आप प्रेशर थोड़ा ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा कम आ जाएगा फॉर सेम मोल। ये सुनो, अरे पी नीचे गया। सो एनटीपी पे देखो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, ये बात ध्यान रखना। तो हम लोग, लेकिन अगर कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कई बार बुक्स में भी, जो पुराने जमाने की बुक्स है, उन सब में अगर आप देखो तो उसमें यही वैल्यू लेकर के यूज कर दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एसटीपी, और वो डेटा भी ऐसा देते हैं कि जो इसी को सूट करता है। तो सबसे कॉमन ये है, बट मैंने आपको एक जस्ट डिफरेंस दिखा दिया। कई बार लोग ना एनटीपी को रूम टेम्परेचर समझ लेते हैं, दैट इज आरटीपी, आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। तो उससे कंफ्यूज नहीं हो। सो फॉर आइडियल गैस क्या आएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, this is valid for NTP, this is valid for STP. So volume of gas at NTP in liter, ये ध्यान रखना सब कुछ, क्योंकि नीचे भी लीटर में है तो ऊपर भी लीटर रहना चाहिए। अगर नीचे ml में कर दिया 22400, तो ऊपर भी ml में कर लेना। समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. क्लियर है? सो ये ध्यान दे लेना बच्चों। और एक लास्ट में इसमें डिस्कस कर देता हूं, फिर स्टोइकियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम का भी थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखाता हूं, राइट। सो नंबर ऑफ मोल को अगर हमें चार्ज के टर्म में कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो मैंने आयंस ले लिए हैं, फॉर आयंस, करेक्ट, जैसे नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जनरली यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स में, फैराडे लॉ वगैरह के जगह पे यूज होने वाला है, करेक्ट। तो ये क्या आएगा, फॉर आयन कैसे लिखेंगे, गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय मोलर चार्ज, ध्यान रखना। आ जाओ इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम प्रैक्टिस में रहता है आपके। जैसे मैं बोल दूं, बच्चे थोड़ा ध्यान दो, say for example if I said
96500 coulomb. Okay, sample of aluminum I took having charge this. Having charge 96500 coulomb. इससे अगर मैं पूछूं कि यार ये आपके पास सैंपल है तो इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 कितना आएगा? आपके पास 1 by 3. एल्यूमिनियम का सैंपल है सच दैट इतने सैंपल एल्यूमिनियम आयन के हैं कि जिसके अंदर टोटल चार्ज 96500 कूलम आ रहा है। तो इससे आपको क्या बताना है कि कितने मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 है। तो बहुत सिंपल यार, अगर गिवन चार्ज कितना है 96500 कूलम। अच्छा बताओ, 1 मोल एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा एल्यूमिनियम प्लस 3 पे? सो सर 3 फैराडे। 3 फैराडे मींस 3 into 96500। तो ये मिलके कितना आ गया 1/3। तो ये इसका एग्जांपल है, इसको नोट कर लो क्योंकि थोड़ा सा कम प्रैक्टिस में रहता है तो इसलिए समझ नहीं पड़ता है कैसे यूज करना। क्लियर है? तो इतने सारी चीजें ध्यान रखो। अभी देखो इसी को मैं और एक्सटेंड जितना बोल दो ना, आज मैं पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ आपको मोल, और आपको बता सकता हूँ कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल मोल करते रहना है। बस दिखाओ, और भी है, बहुत सारी है, बट इतने बेसिक्स हैं। इसके बाद तो अब थोड़ा सा देखो, इस मोल को मैं कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि यार देखो ज्यादातर रिएक्शंस क्या होते हैं, या तो गैस फेज में होते हैं या तो वो सोल्यूशन फेज में होते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे उनको इंटरेक्शन का जरूरत है। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि यार ये कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, या इसी में मैं बोल दूं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट चलेगा। ये देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि बेटा ये NaCl हो गया और ऊपर से मैं AgNO3, दोनों सॉलिड है, इन दोनों को मैं टच करा रहा हूं ऐसे, दोनों सॉलिड है। कोई रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, नो रिएक्शन। बट इन दोनों को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर प्रॉपरली, Ag प्लस आयन। द मोमेंट आई एम डिसॉल्विंग दैट, ये पूरा सेपरेट हो जाएंगे। उसी तरीके से NaCl भी Na प्लस एंड Cl माइनस में पूरा पूरा सेपरेट हो जाएगा। और बहुत सारे हैं इसमें, मतलब मैं दिखा नहीं सकता, बोर्ड का साइज कम पड़ जाएगा अगर दिखाने लग गया तो। अब इन दोनों को आप मिक्स करो, मींस दे आर एक्वस सॉल्यूशन, वाटर इज आल्सो देयर, दे आर एक्वस। अब आप अगर इनको मिक्स करो तो ऑफ कोर्स देयर विल बी रिएक्शन। NaAgNO3 aqueous when treated with NaCl aqueous, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा होगा, क्या मिलने वाला है हमें? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। करेक्ट? Yes, sir. Na प्लस aqueous, Cl माइनस, सॉरी NO3 माइनस aqueous, बट NO3 माइनस aqueous। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन कभी सॉलिड फेज में नहीं होता, या तो वो गैस फेज में रिएक्शन होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जहां पे हो सके, या तो फिर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में जाकर के। मतलब द एजेंडा इज दैट आयन शुड बी फ्री इफ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। So most common thing is apart from the gaseous reaction, आपको solution, तो जब भी solution का बात आएगा तो concentration terms आ जाएंगे, molarity, molality, normality, formality, isn't it? Strength, ppm, ppb, percentage weight by weight, weight by volume, ये सारे terms आएंगे। ओलियम का concentration, volume concentration of H2O2, ये सारी terminologies आती है। तो उतना सब डिटेल में ना जाकर के मैं बस ये एक बता दे रहा हूं, अगर वो मोलैरिटी दिया है फॉर सॉल्यूशन, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान रखना कि मोलैरिटी मोल पर लीटर में होता है तो वॉल्यूम को भी लीटर में यूज करना। तो ये भी आपको क्या दे देगा? मोल, क्योंकि मोलैरिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
divided by volume of solution in liter. Yes or no? Yes, sir. अरे भाई इतना तो आइडिया होगा सबको, है ना? ये तो बहुत Yes, छोटी छोटी sir. चीजें बता रहा हूँ यार, अभी तो मैं बहुत अंदर तक गया भी नहीं, अभी तो आपका एक तरह से ब्रश अप करा रहा हूँ। अभी आप सोच लो, ये है बहुत छोटा चीज है ना, बहुत ही छोटा चीज है, इतना भी अभी मैंने डिस्कस किया, कुछ बहुत बड़ा सा चीज नहीं किया, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे आइडिया लग रहा है कि कभी कोई एक आंसर दे रहा है, कभी वो भी गलत दे रहा है। तो आप सोचो, जबकि ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा मोरलेस, अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में तो खूब टाइम दे के पढ़ते हैं हम लोग। फिर भी आप सोचो कि हमारे बीच में फ्लॉज हैं। हाँ, आई कंप्लीटली एग्री, तो हो सकता है 10 चीजें मैंने पूछी हो, उनमें आपको कुछ 2-3 ना पता हो, बाकी सब चीजें मालूम हो। शायद यही रीजन है कि इतनी जितनी बातें मैं अभी डिस्कस कर पा रहा हूँ, रेगुलर क्लास होती तो शायद ये 3 लेक्चर का टॉपिक होता, 4 लेक्चर का टॉपिक होता, उनको एक एक चीज समझा समझा करके वो करना। आपके लिए ये विद इन अ क्लास होने तक हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो ऐसे ही करना है, ऐसे ही सीखना है, छोटे छोटे जो भी फ्लॉज हैं उनको दूर करते चलना है। करेक्ट, वेरी गुड। तो सर अब आपने क्या क्या सिखा दिया? आपने मोल वेरियस मेथड से कैलकुलेट करना सिखा दिया, अब इनके यूज कहाँ पे करेंगे? देखो यार, यूज तो हमें सिंपल कैलकुलेशन में ही करना है। स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस अब हम करेंगे कि कोई भी रिएक्शन दिया हो उससे हमें ये कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, राइट? तो आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बिना बैलेंस किए आप यूज मत करना कभी भी। रिएक्शन बैलेंस्ड आप समझते हो कि यार लेफ्ट साइड में जितने आइटम हो एक पर्टिकुलर टाइप के, उतने ही राइट साइड में होने चाहिए, वैसे रिएक्शन सारे बैलेंस है। ऐसे मैं बोल दूं कि यार रिएक्शन अगर आप करा रहे हो किसका, से फॉर एग्जांपल BaCl2 का, किसके साथ करा रहे हो आप, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज ले सकता हूँ, सल्फेट भी ले सकता हूँ Na2SO4 के साथ। एक्वस एक्वस क्यों बोल रहा हूँ एक्वस एक्वस? क्योंकि अगर आप एक्वस नहीं लगाओगे तो ये दोनों ही सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है। तो सर क्या बन जाएगा? एनीबॉडी? बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड आल्सो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। इसको थोड़ा बैलेंस कर लो, पहले इसको एक बार बैलेंस कर लो, which will be aqueous, 2 NaCl। ये 2 NaCl कर लूं, ओके। ये सब बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है, चेक कर लो बैलेंस्ड है ना? हाँ बैलेंस्ड यस है। सर। सो अब अगर मुझे इसको पढ़ना हो कि यार ये कैसे रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, तो ऐसा मैं बोलूंगा कि 1 यूनिट ऑफ BaCl2, 1 यूनिट will react with 1 unit of Na2SO4 completely, और वो एकदम से गायब हो जाएंगे सॉल्यूशन में। अब ये स्पीसीज अपीयर हो जाएंगे, क्या? 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये बात अलग है कि ये NaCl यूनिट के फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस एंड Cl माइनस विल बी कंप्लीटली सेपरेटेड बाय सॉल्वेशन, वाटर का पूरा लेयर इस पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो बेरियम सल्फेट एंड Na2। उसी तरीके से एक बार मैं फिर से बोल दूं, जैसे मान लो मैंने बोला बेटा N2H2 कंबाइंस फॉर्म्स अमोनिया। देखो यहाँ डिफरेंस है, जनरल अमोनिया में आपने देखा होगा यहाँ इक्विलिब्रियम डालते हैं, क्योंकि रिएक्शन वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता है, इक्विलिब्रियम में। नॉर्मली मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो ऐसा कंप्लीट हो गया तो सो N2H2 अमोनिया, तो बैलेंस कर लेंगे N2,3H2 अमोनिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि 1 mole of ammonia when reacts with 3 mole of H2 forms 2 mole of ammonia। अच्छा सर ये बताओ आप कि 1 mole बोल रहे हो, अगर सपोज करो 2 मॉलिक्यूल है इसका, हालांकि ये बहुत ही
इमेजिनरी सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आप ऐसा देखना चाहो तो ऐसा कुछ हो रहा है कि N2 N2 H2 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 एंड H2 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 ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और क्या मिलने जा रहा है हमको? इनके जगह पे हमको क्या मिलने जा रहा है? अमोनिया अमोनिया। अगर हमने दो नाइट्रोजन लिया था तो अमोनिया अमोनिया ऐसा हो जाएगा। मतलब अब ये कंटेनर में ये पूरा गायब हो गए, उसी कंटेनर में अब ये रीअपियर हो गए। ऑफ कोर्स इट विल नॉट हैपन इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इट विल टेक टाइम। उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर रखा है उस पर डिपेंड करता है। बट अभी मैं वो सारे फैक्टर्स, वो जो स्पीड का फैक्टर है वो हम लोग कहाँ डील करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। कितने एक्सटेंट तक ये के जाएगा वो कहाँ डील करते हैं हम लोग? सम पार्ट इन थर्मोडायनेमिक्स एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये फिजिबल होगा या नहीं होगा गिवन कंडीशन पे? प्योरली इन थर्मोडायनेमिक्स से Spontaneity. तो पढ़ना एग्जैक्टली पढ़ना इसी के बारे में है। बट अलग अलग चैप्टर में उसकी एनालिसिस हम अलग अलग एस्पेक्ट पे करते हैं। स्पीड के बारे में काइनेटिक्स में, फिजिबिलिटी के बारे में, होगा भी कि नहीं ये इमेजिनरी रिएक्शन है, हो सकता है ना हो, तो थर्मो में करेंगे। और किस एक्सटेंट तक होगा, कहां तक आएगा इक्विलिब्रियम तक जाने के बाद, वो हम डिस्कशन इक्विलिब्रियम में करते हैं। तो ये देख रहे हो अलग अलग एस्पेक्ट, इसलिए पूरा फिजिकल जब पढ़ते हैं देन वी यूज टू अंडरस्टैंड। फाइन, सो ये है हमारा रिएक्शन। तो एक बात फिर से मैं बोलूंगा, बच्चे गलती क्या करते हैं? इमोशन में आके वो ग्राम में कैलकुलेशन करने लगते हैं। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 grams ऑफ दिस एंड फॉर्म्स हाउ मच 2 grams। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन ग्राम में नहीं हो रहा है, रिएक्शन तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के कोलिजन पे, वो नंबर्स के फॉर्म में जा रहा है। और नंबर्स के फॉर्म में, अगर हम केमिस्ट्री में नंबर्स की बात करें तो मोल के फॉर्म में इसलिए मोस्ट कॉमनली डिस्कस करते हैं। बोलते हैं कि 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 3 मोल। तो कभी भी ग्राम ग्राम का मत करना, करना भी हो तो उसको मोलर मास में कन्वर्ट करके। जैसे अगर मुझे बोलना ही हो तो मैं बोलूंगा कि 28 grams ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 grams ऑफ हाइड्रोजन। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. एंड फॉर्म 34 30 grams. ये बनता है। ग्राम्स में करना ही है तो ऐसे आप करोगे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा जब रिएक्ट करें। अब ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे एक तो क्वेश्चन इसी टाइप का हो गया कि ये बताओ यार बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 14 grams ऑफ नाइट्रोजन? 3 by 2. तो सिंपल है यार, 14 ग्राम मीन्स 1/2 मोल हो गया। 3 मोल से मुझे 1 मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो 1 मोल से 1/3 करेक्ट। इसका मैंने कितना, सॉरी किसका क्या दिया था, इसका 14 ग्राम। तो 1 से मुझे इसका 3 चाहिए सर, तो हाफ से इसका कितना चाहिए? 3/2 मोल। अब ग्राम में चेक करना हो तो 3/2 इंटू 2 कर दो, 3 ग्राम चाहिए। अच्छा, इसके 14 ग्राम से ये कितना बनने वाला है? तो आप देखो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो मोल से मोल में आप कैलकुलेशन करोगे, ग्राम को लास्ट में कन्वर्ट कर देना। ये तो सबसे सिंपल और प्रोटोटाइप चीज हो गई। और इसमें थोड़ा सा घुमाना हो तो क्या करेगा? एग्जाम में वो आपको मतलब एक ही चीज अभी तक मैं दे रहा था ना आपको, N2 दे रहा था या फिर आपको मैं हाइड्रोजन दे रहा था और बाकी सब चीजें पूछ रहा था एज्यूम करने के लिए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लो मैंने दोनों दे दिया, मैंने बोला बेटा 1 ग्राम इसका भी ले लिया, 1 ग्राम इसका भी ले लिया। फिर अब लिमिटिंग बताओ, रिएजेंट अगर आ ये जाएगा फिर। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट वाला कुछ कंसेप्ट लगेगा फिर, कि एक पूरा रिएक्टर का एक रह जाएगा। एग्जैक्टली। अगर दोनों मैंने 1 ग्राम दे दिया तो थोड़ा गेम हो सकता है, आपको इनके नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो ये तो आएगा 1/28 मोल और ये आएगा कितना? 1/2 मोल। अब आप सोचो कि ये कुछ वैसी वाली ही बात हो गई, राइट? मतलब आइडियली मुझे 1/28 के लिए ये कितना चाहिए? तो आप देखो 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1/28 के लिए अगर कंप्लीट रिएक्शन करना है तो इसको 3/28, जबकि ये दिया कितना हुआ है? 1/2। कम है या ज्यादा है? ज्यादा। बहुत ज्यादा है यार। ये इसका मतलब ये एक्सेस हो गया। ये कुछ वैसी वाली बात हो गई कि आपके कंटेनर में नाइट्रोजन तो कम है, हाइड्रोजन खूब सारे प्रेजेंट है। खूब सारे मतलब जितना स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो
से ज्यादा, इट इज, ज्यादा का मतलब ये नहीं हुआ, देखो ऐसे ग्राम में तो दोनों इक्वली दिया है, ज्यादा का मतलब ये नहीं। आप देखो H2 खूब सारे H2 है, तो ये तो 3 ही H2O से कंबाइन करेगा, ये भी 3 है, अब बच गया ये एक्स्ट्रा, मैं क्या करूं? ये अकेले बच के रिएक्शन कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कभी भी अगर वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से वो अनप्रोपोर्शनेट कभी भी हम चीजें ले लेते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन हमेशा हम जो भी हमें आंसर करना होता है उसमें किस चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो पहले खत्म हो जा रहा है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे पहले ही खत्म हो गया, जब ये पहले ही खत्म हो जा रहा है तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन से ही प्रोडक्ट डिटरमाइन करेंगे, हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा बच गया। कभी कैलकुलेशन करना हो तो मैं बोलूं बेटा 1 ग्राम से कितने ग्राम अमोनिया बनेंगे, तो इसका मत यूज करना, गलत आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो गया, ये तो एक्स्ट्रा बच गया। जो पहले खत्म हो गया उसके बाद तो रिएक्शन ही रुक जाएगा, तो जैसे ही ये खत्म हुआ उसी टाइम पे जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर है। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, कंसंट्रेशन टर्म, ये सब हम अगले क्लास में करेंगे। आज आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी एलिमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड, चेक, जस्ट चेक, आपके बेसिक्स के लिए है बस वो, ठीक है, एक बार उसको ब्रश अप करो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।